Next point is importance of microeconomics. We already watched the scope of microeconomics. Next we are watching the features of microeconomics. Now we are watching importance of microeconomics, right? So the first point is price determinations. Okay, the microeconomics explain how the prices are different products and various factors of productions are determined, right? In the market you are watching the different kinds of goods available, their prices are different. So how the prices are decided? First of all, they are decided that goods is a contained by fundamental goods or luxurious goods. If the luxurious goods, the prices are more. If the fundamental goods, the prices are lubricate or what you call elastic. Okay, it is always changeable, right? So also the demand and supply is decided the price. When the demand and supply is equal, that prices is efficient for producers also and consumers also. Therefore the demand and supply is decided the price. Second, there are in each and every firms there are four factors of productions, and those factors of productions have given some payment. Okay, so that payment, when that payment is given to that all factors, that time the prices of goods and commodities are decided. So microeconomics is describe that how the prices of goods and services are described. You understood whatever I am saying? First of all, there are multiple types of goods, so therefore first of all they divided the goods in luxurious goods or fundamental goods, right? If the fundamental goods, the prices are elastic. Okay, it's a changeable, sometimes it's increasing, sometimes it's decreasing. But if the goods are luxurious goods, the prices are always high, because person is accepting that kind of goods only uh, one or twice in their whole life, right? Second one, the prices of goods and services are decided also the demand and supply structures. Okay, if the demand and supply are same, that times the prices of goods are decided, right? Also we are watching there are four types of factors of productions in every firms, so that factors are given some kind of payment. Okay, and that payment, after that payment the price of goods and services are decided, so therefore it's called price determinations. Hmm? Second, free market economy. Okay, so what is the free market economy? We are watching in the ninth standard, there is a chapters, whatever the chapters, the one simple questions is decided when you are an entrepreneur. When become you are become an entrepreneur, on that time you have to first decided that what to produce, how to produce, whom to produce, right? And these questions answers is given by microeconomics, because the wants are unlimited and the resources are limited. So therefore it is important that how which needs is first completed and which needs is completed by second. So therefore the three questions answers in production process always decided what to produce, how to produce, and whom to produce, right? Or how much to produce. So these kind of questions answers is given by microeconomics. Okay, also the microeconomics is also described that there is no government interventions or any agencies in the market structures. Okay, because markets are different types, like monopolistic market, perfect competition market. So therefore no interventions by the government or any other agency in the market economy, right? Next one is foreign trade. Okay, microeconomics is help to various aspect of the foreign economics, like effects of tariff of the commodity, determinations of currency exchange rate of any two countries, gains of international trades to the particular country. Okay, when we are study about the microeconomics, we are find out the reasons to increasing the tariffs of the commodity. Okay,
when we are going to the one state to another state, that time the tariffs of goods and services are increases. So why is it happen? That's answer is given by microeconomics. Also, the currency rates are different in each and every country. Why the rates are different, that reason is given by microeconomics. Okay. Also, how to international trade is going on, it is described in the microeconomics book. Okay. Next, fourth one is economic model building. So you can understood what is economic model building. So economic model building, that means each and every country have decided to how to move their complex economic situations. Okay. And so therefore various types of economics model, like demand model, like supply model, like saving model, like investment model, are the part of microeconomics. Okay. So these various terms, concept, terminology, tools are the economic analysis, which is help to economic variables. Okay. Which is help to the economic variable. Next, business decision. When we are watching, the main subject of microeconomics is individual firms or individual industry. So therefore microeconomics theories are helpful for the businessman to crucial business decision. Okay. Means what to produce, cost of production, the prices of goods, and maximum output and profit from the productions is decided by microeconomics book. हिंदी में गुड्स की प्राइस डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई का स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि गुड्स की प्राइस कैसे डिसाइड होती है. आप सबको मालूम है, जहाँ पे गुड्स एंड डिमांड एंड सप्लाई सेम होगा वहाँ पे प्राइस डिसाइड होगी, राइट. सो प्राइस डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है. उसी के साथ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर्स, इनको जो पेमेंट देनी है, वो पेमेंट देने के बाद किसी गुड्स की प्राइस डिसाइड होती है, राइट. सो देयरफॉर गुड्स की प्राइस डिसाइड करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और की प्राइस डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक सिखाता है कि कैसे डिसाइड करनी है. दूसरा है, हम मार्केट में जाते तो फ्री मार्केट इकोनॉमी. ओके. सो फ्री मार्केट इकोनॉमी, हमारी कंट्री फ्री मार्केट इकोनॉमी है. हमने फॉरेन कंट्री को इन्विटेशंस दिया है कि जस्ट कम इन आवर कंट्री टू टेक अ प्रोडक्शंस, टेक प्रॉफिट इन योर कंट्री. ओके. बट गिव द प्रोडक्शंस टू अस, राइट ना. सो प्रोडक्शन कौन सा चीज़ों का करना है, क्या करना है, कितना करना है, ये इन क्वेश्चंस के आंसर फ्री मार्केट इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसके आंसर्स ढूंढने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में हमने किया है, राइट. जहाँ पे डिमांड और सप्लाई स्टेबल होगा वहाँ पे वो प्राइस डिसाइड होगी, राइट. नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड करते वक्त टैरिफ इफेक्ट जानना ज़रूरी है. टैरिफ यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें जाते वक्त, गुड्स एंड सर्विसेज जाते वक्त जो हमें टैक्स देना पड़ता है उसको कहा जाता है टैरिफ, राइट. सो वो जो टैक्स है, तो वन टू अनदर स्टेट में कितना रहेगा, वन कंट्री टू अनदर कंट्री में कितना रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है. ओके. जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस पता चलेगी तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को कितना टैक्स दूसरे कंट्री स्टेट में जाते वक्त देंगे, ये भी डिसाइड होगा, राइट. उसी के साथ दो अलग अलग कंट्री में जो करेंसी होती है उनका करेंसी रेट एक्सचेंज होता है या अलग अलग होता है, राइट. तो ये रेट अलग अलग क्यों होता है ये भी हम लोग देखेंगे. तो ये सिंपली इसका रीजंस होगा कि करेंसी का जो डिमांड है और जो हमारे यहाँ से सप्लाई है उसके ऊपर वो करेंसी का रेट चेंज होते रहेगा. इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. तो प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, राइट. नेक्स्ट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बहुत सारी कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, राइट, उसकी जो डेफिनेशंस देखते हैं, उसकी जो टर्म्स देखते हैं, उसके लोग जो टूल्स देखते हैं, जैसे डिमांड है, सप्लाई है, यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है,
मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, या बाकी सारी जो, इन सब चीज़ों से हमें एक इकोनॉमिक मॉडल बनाना सीखना आता है कि हमारे यहाँ पे डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, और मार्केट में वो कैसे बेचा जाएगा। तो एक तरीके का हम लोग मॉडल उससे बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजन। एक बिजनेसमैन जो होता है उसको बिजनेस में बहुत सारे क्रूशल डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो एक बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमने इंटरप्रेनर नाम का पार्ट देखा है, इंटरप्रेनर की क्वालिटीज़ देखी है, इंटरप्रेनर्स के फंक्शंस देखे हैं। तो ये जो हमने सीखा उससे हमें पता चलता है कि बिजनेसमैन को कैसे बिजनेस डिसीजन लेने हैं, राइट। उसको 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। पहला तो चीज़ों का प्रोडक्शंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, देन गुड्स की प्राइस, एंड तीसरा है मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। सो ये डिसाइड करने के लिए इंटरप्रेनर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके फंक्शंस क्या है, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखा है, राइट। दैट इज़ बिजनेस डिसीजन। अभी गवर्नमेंट को क्यों इस्तेमाल होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को इस्तेमाल होता है टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड करने के लिए, राइट। गुड्स एंड प्रोडक्शन, जब हम फैक्टर्स की प्राइस देखेंगे या फैक्टर्स को पेमेंट दे देंगे, फैक्टर्स को हम लोग पेमेंट देंगे, लैंड को रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिए, देन कैपिटल को इंटरेस्ट दिया, या मैक्सिमम प्रॉफिट दिया इंटरप्रेनर को। उसके बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते वक्त कितना टैक्स लगेगा, ये चीज़ों की प्राइस के ऊपर डिसाइड होगा, राइट। उसी के साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे रहेगा, प्राइस पॉलिसी क्या रहेगी, पूरे कंट्री में गुड्स की प्राइस कितनी रखनी चाहिए, ये सब गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ efficient allocations ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लोगों को अवेलेबल करके देना और सोसाइटी का फ़ायदा करना। डिमांड अच्छी रहेगी तो सप्लाई भी अच्छा रहेगा, और डिमांड और सप्लाई की दोनों कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो सोसाइटी का फ़ायदा होने के लिए या वेलफेयर होने के लिए डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि टैक्सेशन डिसाइड करने के लिए, टैक्स डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के कौन कौन सी चीज़ों की पब्लिक डिमांड करती है और कौन कौन सी चीज़ों का सप्लाई करना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ गवर्नमेंट को सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, लोगों का या कंट्री का वेलफेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये डिसाइड करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट सीखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, कंट्री के पास जो नहीं है उसको छोड़कर कंट्री में जो चीज़ें अवेलेबल है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, इनमें से अगर लैंड है तो सिर्फ लैंड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमने बनानी चाहिए। अगर लेबर ज़्यादा है तो लेबर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाओ। अगर मशीनरी कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ। ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखने मिलता है, दैट इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ और उससे वो मार्केट में बेचो, ताकि आप, इससे क्या होगा, सोसाइटी को, सोसाइटी का वेलफेयर होगा और सोसाइटी को लगने वाला टैक्स भी कम होगा। आ रहा है समझ में। सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म।